Hello students, how's you all? So let's start with our next topic, the last topic of our chapter, that is training. This is the last element of staffing, as we have studied about the three elements of staffing, that is recruitment, selection and training. So I have already taught you about selection and recruitment. Now it's time to learn about training. So what is training? Training means something, it is an act of increasing the knowledge and technical skills of employees for doing a particular task. Some people have the theoretical knowledge themselves, उनके पास theoretical knowledge होती है, but we have to provide them practical knowledge as well. And I told you number of times कि every organization have different method of doing a particular task, and for that task the organization have to provide training programs to their employees so that the work can be done according to the methods and criteria of the organization, right? So this is all called training about. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीका होता है काम करने का, और उस तरीके के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को? ट्रेनिंग, सो दैट that method should be learned by their employees. So we can say that upgradation of skills, abilities and knowledge of a particular task is known as training, right? Training जो होती है, it provides benefits to the firm as well as it's provide benefits to the employees as well. अगर हम किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो फर्म के लिए भी बेनिफिशियल होती है एज वेल एज एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will go through the benefits to the firm. So what are the benefits of training to the firm? First one is avoids wastage of time, money and efforts. If you will provide training program to your employees, then it will reduce the wastage of, it will reduce the time, it will reduce the money and it will reduce the efforts. अगर हम किसी को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो आपका एक तो समय खर्च होगा, क्योंकि द पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड स्किलफुल इन देयर टास्क. वो पर्सन अपने टास्क में, अपने वर्क में बहुत नॉलेजेबल होगा, स्किलफुल होगा, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा किसी भी काम को करने में. प्लस आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर जब आप एक्सपर्ट हैं किसी काम को करने के लिए, देन यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द रिसोर्सेज, एंड इफ द रिसोर्सेज विल बी वेस्ट देन योर मनी विल ऑल्सो वेस्ट. सो मनी, टाइम, एफर्ट्स कुछ भी वेस्ट नहीं होता है इफ़ you will provide training to your employees. Second one is increase productivity. It is a saying that a trained person always increase the productivity in comparison to a untrained one. ये कहावत है कि जो एक ट्रेंड एम्प्लॉय होता है वो हमेशा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, जबकि एक अनट्रेंड एम्प्लॉय अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है. और क्योंकि ट्रेनिंग है, ट्रेंड है बंदा, तो वो प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा ऑब्वियसली, एंड इफ द प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज द प्रॉफिट विल ऑल्सो रेज, विच विल अफेक्ट द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज सर्वाइवल एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. नेक्स्ट इज इंक्रीज एम्प्लॉयज़ मोरल. अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इससे एम्प्लॉयज़ का मोरल जो है वो बूस्टअप होता है. दे मीन्स उनका सेल्फ मोटिवेशन, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, प्लस अपने काम को अपने तरीके से करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है, उनका मोरल बूस्टअप होता है. नेक्स्ट इज डिक्रीज सुपरविजन. इफ़ you have a trained employee, means if you will provide the training to your people, if you will provide the training to your employee, then you are not supposed to have an observer or have an supervisor on that particular employees. हमें अगर आपके जो पर्सन्स हैं, आपके जो पीपल हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रेंड हैं, तो आपको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनके ऊपर, क्योंकि आपको पता है दे आर ट्रेंड एनफ टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, सो देयर इज़ नो नीड टू सुपरवाइज दैम कंटिन्यूसली, right? So these are the benefits to the firm. Now there are certain benefits of the training to the employees also. First one is improved skills and knowledge, so better career opportunities. If you will provide training program to your employees, then definitely it will increase the skills, they will enhance their knowledge and they can go through number of career opportunities. उनकी career opportunities बढ़ जाएंगी. नेक्स्ट इज़ बेटर परफॉर्मेंस. अगर आपके वर्कर्स ट्रेंड हैं, आप उनको अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी हो जाएगी? बेटर हो जाएगी. मीन्स दे कैन परफॉर्म द टास्क इन अ बेटर वे, और वी कैन से दैट दे कैन यूटिलाइज द रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. थर्ड वन इज़ लेस एक्सीडेंट्स.
एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं. देयर आर नंबर ऑफ मशीनरीज ऑन विच द वर्कर्स हैव टू डू द वर्क. So the chances of accident can be more if the person is not trained. By providing them training, we can make them learn about the uses of the machinery so that the chances of accident can be less. Next is increases satisfaction among employees. Employees के मन में एक satisfaction रहता है that we are getting training from our organization, so they somewhere they have some satisfaction in themselves, right? Now there are certain training methods. There are two type of training which we can provide to our employees, that is on the job training and off the job training. In on the job training we have to provide the training at the work place only. जहाँ पर हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, हम उसी वर्क प्लेस पर उनको क्या प्रोवाइड कर देते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. उस टाइप की ट्रेनिंग को हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. इसको हम बोलते हैं लर्निंग वाइल डूइंग. काम करते करते सीखना इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. Whereas off the job training means if we will provide the training far away from the workplace. आपका काम, आपका जो ऑफिस है वो है दिल्ली में और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है तिरुवनंतपुरम में. तो वो तिरुवनंतपुरम और ये दिल्ली वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या हो गया, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गई. यानी कि जहाँ आपको काम करना है वहाँ आपको ट्रेनिंग ना प्रोवाइड कर कर आपको कहीं और ले जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, राइट. तो फर्स्ट वन इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. जो आपके ऑन द जॉब मेथड्स होते हैं उसमें पहला मेथड है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल if a new candidate is there in your organization then he doesn't know anything that how he can operate the machinery, how he should do the work. So a master is there to teach everything. एक मास्टर होता है उसको, तो यहाँ पर जो आपका ट्रेनी होता है उसको एक मास्टर के अंडर वर्क करना होता है और वो सीखता है काम करने का तरीका. और थोड़े टाइम बाद when he got skillful and knowledgeable in that particular task, तो वो क्या बन जाता है, ट्रेनी क्या बन जाता है, मास्टर बन जाता है. और मास्टर ऑब्जर्वर बन जाता है और वो ये ऑब्जर्व करता है वेदर ही इज़ डूइंग द वर्क और नॉट. तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है, अ मास्टर विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द ट्रेनी. बाय डूइंग द वर्क द ट्रेनी जस्ट नीड टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग दैट व्हाट मास्टर इज़ डूइंग, एंड आफ्टर 15 or 20 days द मास्टर विल बिकम ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर विल बिकम मास्टर. नेक्स्ट इज इंटर्नशिप. व्हाट इज़ इंटर्नशिप, आपने सुना होगा, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, ये सब क्या करते हैं आफ्टर गेटिंग देयर डिग्रीज़ और डिप्लोमास, तो इनको इंटर्नशिप करनी होती है ना. अपने किसी एक्सपर्ट के अंडर रहकर कुछ मंथ्स की इंटर्नशिप, 6 months और 1 year की इंटर्नशिप करनी होती है. दैट इज़ कॉल्ड इंटर्नशिप. वो एक ट्रेनिंग लेनी होती है उनसे. तो इट इज़ meant for professionals and every professional have to work under experts like CA, doctors, etc. And after getting the knowledge from these experts, after some time they can open their own professional bodies, I should say, right. Next is induction training. Induction training में कुछ नहीं होता है. It is a very simple form of training. Induction means introduction. Whenever any new employee will come in your organization, you just have to introduce the new employee to the existing employee as well as to the workplace. आपको अपने नए एम्प्लॉय को वर्क प्लेस के साथ इंट्रोडक्शन करवाना या नए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाने को ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग, राइट. इसके बाद आती है आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जनरली जो इम्पॉर्टेंट है वो एक ही है, आपकी वेस्टिबल प्रोग्राम. वेस्टिबल प्रोग्राम में मैंने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपको बता चुकी हूँ. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है व्हेन वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग फार अवे फ्रॉम योर वर्क प्लेस. हम जब आपकी वर्क प्लेस से आपको बाहर ले जाकर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. एंड द मेथड इज़ वेस्टिबल प्रोग्राम. वेस्टिबल प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, वी हैव टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द पीपल फार अवे फ्रॉम देयर वर्क प्लेस, बट नॉट ऑन द ओरिजिनल मॉडल ऑफ द मशीनरी, बट वी हैव टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग ऑन द डमी मॉडल. डमी मीन्स जो आपके डमी मॉडल्स होते हैं ना, जो नकली मॉडल्स होते हैं, बिकॉज सम मशीनरीज आर वेरी कॉस्टली and very dangerous while doing the work. So first of all, it is a responsibility of the organization to provide training programs to their employees on the dummy model. ठीक है, डमी मॉडल पर कुछ दिन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. आफ्टर व्हेन यू गेट एक्सपर्ट इन द पर्टिकुलर टास्क, देन द पीपल विल गो एंड वर्क ऑन द ओरिजिनल मॉडल्स. तो उसको हम बोलते हैं वेस्टिबल प्रोग्राम. वेस्टिबल प्रोग्राम काफ़ी तरीके के हो सकते हैं, लाइक फिल्म्स दिखा सकते हैं आपको, लाइक जो आपकी चक दे इंडिया आई थी, इट इज़ मेंट फॉर द हॉकी प्लेयर्स, और
तो ये एक तरीके से अगर हम किसी को फिल्म ले जाकर दिखा रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, तो वो भी एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का ही पार्ट है. लाइक क्लासरूम लेक्चर्स, इफ़ वी विल प्रोवाइड द क्लासरूम lectures to the employee, then it is also one of the part of the job training. So number of things are there, but very important is vestibule program, which is in your syllabus, right? So here your 6th chapter has been completed, that is staffing, and I hope you have understood all the topics